Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter executive, and in this regard we were discussing about the Prime Minister and his Council of Ministers, and we have seen that the Prime Minister is the most important post in the parliamentary form of government, and we have also seen who becomes the Prime Minister. The leader of the majority party becomes the Prime Minister, and then the Prime Minister select his team, that is Council of Ministers, and then after selecting the ministers, the Prime Minister distribute the portfolios and ranks among the ministers. And in this regard we have also discussed that there are three ranks of ministers in Council of Minister, and then we were also discussing कि किस तरह से during the discussion in Constituent Assembly there was demand for the executive should be formed in such a manner that it should be the minister should not be selected by the Prime Minister but they should be elected by the Parliament. जैसे कि इसी तरह का सिस्टम जो है वो स्विट्जरलैंड में अडॉप्ट किया गया है. तो कुछ ऐसे हमारे लीडर्स थे जिनका ये कहना था कि हमारे यहाँ भी एग्जीक्यूटिव का उसी तरह से इलेक्शन होना चाहिए थ्रू द पार्लियामेंट, बट वी हैव नॉट अडॉप्टेड दैट सिस्टम. एंड देन देयर वाज आल्सो some controversy regarding size of the Council of Ministers, because 1989 के पहले तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट 89 के बाद से क्या होता है, जब से कोalition गवर्नमेंट की स्टार्टिंग होती है there is pressure on the council, on the Prime Minister to include more and more number in the ministry from different parties. So in order to fulfill this pressure, in order to fulfill the demands of different constituent political parties, the Prime Minister used to make his Council of Minister bigger. तो इससे क्या हुआ कि एक अमेंडमेंट ला करके इसके साइज को लिमिट कर दिया गया. नाउ देयर कैन द साइज ऑफ द ministry is limited. Council of Minister, it cannot exceed more than 15% of the total membership of the lower house. तो इस तरह से ये फिक्स हो गया है. एंड नाउ वी विल सी कि अभी भी हम यही देख रहे थे कि कैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दीज बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर. जैसे हमारा एग्जीक्यूटिव का जो हेड है, that is the Prime Minister, he is the leader of the opposition, leader of the majority party in the Lok Sabha. And then we have also seen कि जो भी Prime Minister होंगे या ministers होंगे उनके लिए it is compulsory for them to be the member of either house of the parliament. If they are not the member of either house of the parliament, then they will have to take the membership within 6 months of their appointment. So in this way we can see that one of the most important feature of parliamentary system is the relation between the executive and the judiciary. Other than this, it is executive and the legislature. Other than this, there is another relation between these two organs of the government. We find that in our constitution, so many mechanisms are mentioned through which the parliament controls the executive. Executive has immense power because it is the real head of the government, है ना. तो the constitution has given immense power to the executive, but at the same time this power cannot be used in an arbitrary manner by the executive. The legislature is there to keep control over the executive. There are so many ways like question hour, 0 hour, half an hour discussion, adjourned motion. बहुत सारे ऐसे जो मैकेनिज्म हैं उसका मेंशन किया गया है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में. जो कि वो तरीके हैं जिनसे कि जो हमारा लेजिस्लेचर होता है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है. एंड वॉट एवर इज डन बाय द एग्जीक्यूटिव दैट इज सुपरवाइज्ड बाय द लेजिस्लेचर. जो कुछ भी एग्जीक्यूटिव करता है उसका
सुपरविजन लेजिस्लेचर करता है। जो कुछ भी एग्जीक्यूटिव करता है उसके रिगार्डिंग उससे सफाई मांगी जाती है कि आपने ऐसा किया तो क्यों किया। और ये जो सफाई मांगी जाती है जिसको हम क्वेश्चन आर के नाम से जानते हैं, जिसमें कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चन का सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना चाहिए। तो जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, इट इज़ required from the ministers that they must give satisfactory answer to the questions. Many times it happens ki the opposition is not satisfied with the answer given by the minister, and in that case the opposition starts walking out of the house, है ना, walk out कर जाते हैं। तो इस तरह से these are the mechanism, these are the various ways through which the legislature puts its control over the executive. Why there is need to control the executive? The question is, आखिर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने की जरूरत क्या है? एग्जीक्यूटिव इज देयर इज नीड, वेरी मच नीड टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव बिकॉज द एग्जीक्यूटिव हैज a very vast power, immense power is given to the executive by the constitution, and if there is no mechanism to control the executive, then it can start misusing its power, it can start overusing its power, and in this way democracy can be subverted. So democracy है हमारे यहाँ, we have adopted democratic system, and democracy का मतलब होता है rule of the people. So people are not directly ruling, but they are ruling through their representatives. So the representatives are given the right to control the executive, है ना। तो ये डेमोक्रेसी को रियल बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो हमारे लेजिस्लेचर है उसके पास ये पावर होनी चाहिए कि वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सके। ओके, तो ये पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है हमारे लेजिस्लेचर को। और इसके साथ ही एक और जो टर्म है जो कि इस रिलेशनशिप में जुड़ा हुआ है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो टर्म है, एंड दैट टर्म इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। लोकसभा के टुवर्ड्स वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। जिस समय जिस मोमेंट जो मिनिस्ट्री है वो अगर लोकसभा में मेजॉरिटी का सपोर्ट लूज करेगी, उसी समय उसको ये रिजाइन करना पड़ेगा। जिस समय उसको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का यही मतलब होता है कि जब तक हाउस का कॉन्फिडेंस उसमें है, द हाउस बिलीव्स in the Council of Ministers. The House believes that the Council of Ministers is working for the people of the country. तो जब तक ये कॉन्फिडेंस रहता है तभी तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रहती है। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है हाउस के अंदर कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नॉट एबल टू वर्क अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ द पीपल, तो उसी समय क्या होता है कि वो मिनिस्ट्री खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का यही मतलब है कि पूरी की पूरी जो मिनिस्ट्री है वो एक साथ एज अ टीम इट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लोकसभा। ठीक है, और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि जिस तरह से ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिस्टम है वो ये इंडिकेट करता है कि जो मिनिस्ट्री है हमारी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो एक एग्जीक्यूटिव कमिटी की तरह काम करती है। जैसे पार्लियामेंट के ही मेंबर्स हैं, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर बने हैं वो सभी पार्लियामेंट के ही मेंबर है, या तो राज्यसभा के या लोकसभा के। तो ये जो मेंबर्स हैं, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा के हो, ये सभी मिलकर के ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना रहे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे काम करता है? एक एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ पार्लियामेंट की तरह काम करता है। ठीक है, और पार्लियामेंट के बिहाफ में ये कंट्री को गवर्न करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें पार्लियामेंट इज द मोस्ट पावरफुल
जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव है, जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, दैट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं उनके बीच में सॉलिडारिटी होनी चाहिए। सॉलिडारिटी का मतलब क्या हुआ कि हम सब एक हैं, ओके, टीम स्पिरिट जिसको हम कहते हैं, तो इसी को सॉलिडारिटी भी कहा जा सकता है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है कि जो मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में सॉलिडारिटी है। दे हैव सॉलिडारिटी, दे हैव द फीलिंग ऑफ सॉलिडारिटी, दे हैव द फीलिंग ऑफ यूनिटी। हम सब एक हैं। अगर कोई भी एक गलत काम करता है या किसी भी एक से गलती होती है तो उसका जो consequences होगा, that consequences will be felt by all the members। ये नहीं कि किसी एक ने गलती किया तो बस उस एक को ही सजा मिलेगी, एक ने भी अगर गलती कुछ किया है तो उसकी सजा सबको मिलेगी। दिस इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड इसका ये मतलब है, सपोज करो कि सिंगल मिनिस्टर, कोई भी एक मिनिस्टर जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर वो मिनिस्टर है, अगर एक सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि ओनली दैट मिनिस्टर विल बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस, बट एक्चुअली इट मीन्स कि द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज टू रिजाइन विद द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। ठीक है, तो अगर एक सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है तो इसका ये मतलब है कि पूरी की पूरी मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगी विथ द प्राइम मिनिस्टर। ओके, एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट इफ अ मिनिस्टर डज नॉट अग्री with a policy or decision of the cabinet, then in that situation he or she must either accept the decision or resign। ठीक है, अगर आप जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से हो रहा है वो कलेक्टिव डिसीजन है। दैट डिसीजन इज नॉट अ डिसीजन ऑफ अ सिंगल मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, वो एक कलेक्टिव डिसीजन है। अब जब बंद कमरे में सारे जो बैठे हुए हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर प्राइम मिनिस्टर के साथ, उनके बीच में आपस में बातचीत हो रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं, डिबेट्स हो रहे हैं अंडर, जबकि वो पब्लिक नहीं हो रहा है, वो आपस में बातें कर रहे हैं एंड पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज टॉक्स एंड डिस्कशंस एंड डिबेट्स। इन दैट सिचुएशन the ministers can express their views. If they are disagreeing with rest of the ministers, they can express it in the meeting, in the private meeting of the council of ministers। लेकिन जब ये एक डिक्लेरेशन होता है, अनाउंसमेंट होता है मिनिस्ट्री की तरफ से किसी एक पॉलिसी के बारे में या किसी एक डिसीजन के बारे में, तो एट दैट टाइम किसी भी मिनिस्टर से ये एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि वो उस डिसीजन के अगेंस्ट पब्लिकली अपने व्यूज को एक्सप्रेस करेगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या ने मिल करके जो डिसीजन लिया है मैं उस डिसीजन को नहीं मानता हूं। अगर किसी मिनिस्टर ने इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया पब्लिक में तो इसका ये मतलब होगा कि उनको रिजाइन करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को, क्योंकि हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट टीम स्पिरिट। टीम, द होल मिनिस्ट्री वर्क्स एज अ टीम। देयर मस्ट बी सॉलिडारिटी, देयर मस्ट बी यूनिटी अमंग द मेंबर्स। अगर जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो कलेक्टिव डिसीजन है, उस डिसीजन से अगर हम किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर को या 2 मिनिस्टर को या 4 मिनिस्टर को, कितने भी नंबर ऑफ मिनिस्टर्स को उस पर्टिकुलर डिसीजन से डिसएग्रीमेंट हो सकता है। सिर्फ हो सकता है ये भी कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का ये डिसीजन हो, बाकी कोई भी मिनिस्टर उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो भी इट इज compulsory for the ministers to accept that decision as their own decision। If they are not ready to accept that decision as their own decision, then in that case they must resign। उनसे रिजाइन
करवाया जाता है। ऐसा होता है जब भी कोई मिनिस्टर जो है वो अपना अलग व्यू रखते हैं तो उनको फिर कंटिन्यू नहीं किया जाता है, बिकॉज उनको टीम की तरह काम करना है। इस तरह से तो फिर वो काम ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये होता है हमारे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज एक तो इसको समझने में कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें समझना होगा कि अगर एक सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है तो पूरी मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगी, और जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ले रही है, पब्लिकली जो भी डिसीजन डिक्लेयर हो रहे हैं, उस डिसीजन को हर किसी को एग्री करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। अगर वो उससे डिसएग्री कर रहे हैं तो फिर उनको रिजाइन करना होगा। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड नाउ वी विल सी कि हमारे कंट्री के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोस्ट है ना। वी ऑल नो प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी इन द कंट्री, एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्राइम मिनिस्टर, है ना। प्राइम मिनिस्टर के बिना वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। अगर कुछ ऐसे सपोज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्टेंस में आई कैसे। ये तभी एग्जिस्टेंस में आई जबकि प्राइम मिनिस्टर आए। सबसे पहले जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है, एंड आफ्टर दैट द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स हिज मिनिस्टर्स। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्टेंस में आती ही इसलिए है क्योंकि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। एंड इसके बाद वो तभी तक रहती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मिनिस्टर्स हैं वो तभी तक अपने पोस्ट पे रहते हैं जब तक प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। सपोज अगर प्राइम मिनिस्टर का अनटाइमली डेथ हो जाता है, बीच के टेन्यूर में ही उनका डेथ हो जाता है, या फिर वो रिजाइन कर देते हैं, तो उस तरह के कंडीशन में व्हाट विल हैपन दैट द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी डिसॉल्व। ओके, पूरी की पूरी मिनिस्ट्री जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, और इस तरह से एक नई मिनिस्ट्री का फॉर्मेशन फिर से होगा अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ अ न्यू अंडर अ न्यू प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर का डेथ हुआ या प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया, उसी मोमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एग्जिस्ट करना बंद कर देगी, और एक नया प्राइम मिनिस्टर फिर से अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट। और ये जो नया प्राइम मिनिस्टर होगा उसका ये काम होगा कि वो फिर से अपनी मिनिस्ट्री का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है। अगर एक सिंगल मिनिस्टर की डेथ होती है तो उसके कारण पूरी मिनिस्ट्री खत्म नहीं होती है। अगर एक सिंगल मिनिस्टर किसी रीजन से रिजाइन करता है तो उसके लिए पूरी मिनिस्ट्री खत्म नहीं होती है। बट हाँ, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी आ जाता है तो वो मिनिस्ट्री खत्म हो जाती है, बट रिजाइन और डेथ होने से नहीं खत्म होती है। बट अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं या उनकी डेथ होती है तो उनके साथ साथ पूरी मिनिस्ट्री जो है वो एंड कर जाती है ना। अब हम क्या देखते हैं कि ये हम दीज आर द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। व्हाट आर वी डिस्कसिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन कि प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं, कौन बनता है प्राइम मिनिस्टर। देन प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम का कैसे सिलेक्शन करते हैं, उनके बीच में एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज, रैंक्स कैसे होता है, देन उनकी साइज के रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है, और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। And in this regard, we have discussed the first point, and the first point is that the Prime Minister is the most important authority in the Council of Ministers. So we can write the Prime Minister
is the central figure in Council of Ministers. Now, under this point, you will have to explain the relationship between the Prime Minister and the Council of Ministers. जो हमने अभी डिस्कस किया कि अगर प्राइम मिनिस्टर के कारण ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्टेंस में आती है, प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन करते हैं या उनकी डेथ हो जाती है तो उसके साथ मिनिस्ट्री भी खत्म हो जाती है। जबकि एक मिनिस्टर की डेथ होने से या रिजाइन होने से मिनिस्ट्री का एंड नहीं होता है, बल्कि सिर्फ एक मिनिस्टर का पोस्ट खाली होता है ना। एंड नाउ द सेकेंड पॉइंट इन दिस रिगार्ड कि क्या उसके पावर्स हैं प्राइम मिनिस्टर की, उसमें हम देखेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ही एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये एक लिंक की तरह काम करते हैं जिसमें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में भी वो लिंक होता है, और इसके अलावे वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक लिंक का काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पार्लियामेंट के बीच में भी। ओके, तो इस तरह से ये इसका रोल इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम देखते हैं कि जैसे इट इज़ व्हेन वी वर डिस्कसिंग द राइट्स द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, हमने देखा था कि ये प्रेसिडेंट को पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर से कभी भी इस बारे में इंफॉर्मेशन मांग सकता है कि कैबिनेट की मीटिंग में क्या बातें हुई, क्या डिस्कशन हुआ, है ना। तो अब जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी प्रेसिडेंट की तरफ से प्राइम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर को वो सारे इंफॉर्मेशंस कंपल्सरी होता है पहुंचाना प्रेसिडेंट को, है ना। तो इस तरह से ये हम देख रहे हैं कि ये एक लिंक की तरह काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर। सो वी कैन राइट दैट द प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स as a link between Council of Ministers on the one hand and the President as well as the Parliament on the other hand. ठीक है, तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक तरफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में लिंक का काम करते हैं, एंड दूसरी तरफ ही आल्सो वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने देखा प्राइम मिनिस्टर के पावर्स के रिगार्डिंग। इसके अलावे भी प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारे पावर्स हैं, एंड यू मस्ट note down this because in your book it is not given like this, point wise कुछ भी नहीं दिया हुआ है, and when you read the book you may not be able to grasp this कि ये इसमें इस तरह से पावर्स दिया हुआ है, जबकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म करता है कि डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और हाउ कैन यू से दैट द प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी इन द गवर्नमेंट। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसमें ये सारे पॉइंट्स हमारे होंगे। तो अभी हमने वी हैव डिस्कस 2 पॉइंट्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अदर पॉइंट्स आल्सो। Now we can write कि the prime minister is the leader of the majority party in the Lok Sabha. In this way,
he leads the House of Representative. So the third aspect of his power is he is the leader of the Lok Sabha. As he is the leader of the majority party in the Lok Sabha, so he is the leader of the Lok Sabha. And because of this उसके पास बहुत सारे powers होते हैं, पार्लियामेंट के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है. ठीक है. इसके अलावे हम और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम जिसको हम इनके पावर के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं. लाइक ही कमांड्स ओवर द ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी ऑफ द कंट्री. जो भी ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है, हमारी जितने भी ब्यूरोक्रेसी में जो स्टाफ होते हैं, दे ऑल are under the control of the Prime Minister. So it is also important that the Prime Minister commands the bureaucratic machinery of the country. ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं, ब्यूरोक्रेसी का जो भी सुपरविजन होता है, दैट इज एवरीथिंग इज डन अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ओनली. तो ही कमांड्स द ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी. देन वी सी ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज लीडर ऑफ द नेशन. अगर हम कहें कि पूरी कंट्री का हमारे इंडिया का लीडर कौन है, तो ही इज द प्राइम मिनिस्टर. ही इज लीडिंग द होल कंट्री. जो भी खास करके अगर कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कोई इंटरनेशनल समिट हो रहा है, तो उसमें कौन जाते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर ही जाते हैं. तो वो क्या है? ही इज द नेशनल लीडर. देन जो हमारा जो कुछ भी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड होता है, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर इज देयर, है ना, बट प्राइम मिनिस्टर का भी उसमें बहुत बड़ा रोल होता है. तो प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज द लीडर ऑफ द नेशन. ओके. तो ये जो है, ये हमारे इम्पोर्टेंट 5 पॉइंट्स हैं जिसको कि हम पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के अंदर ये सारे पॉइंट्स हमारे आएंगे. और इसमें एक पंडित नेहरू ने जो डिस्क्राइब किया है इस प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के बारे में कि द प्राइम मिनिस्टर इज द लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट. ओके. यहाँ पर लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट, लाइक लिंचपिन क्या होता है? जो एक एक्सेल जिसको हम कहते हैं, जैसे व्हील होती है, व्हील जो होती है, व्हील के बीच में एक्सेल होता है ना, और वो पूरा का पूरा जो व्हील होता है वो उसी एक्सेल पे टिका होता है. और उस एक्सेल में को ही हम लिंचपिन का नाम देते हैं. जैसे ये एक बीच में एक्सेल होता है, इसी एक्सेल पे पूरी व्हील जो है वो डिपेंडेंट होती है. व्हील अगर मूव कर रही है तो वो इस एक्सेल के कारण ही मूव करती है. अगर एक्सेल इसका जो पेन होता है, अगर ये खुल जाए, लूज हो जाए, तो फिर व्हील जो है वो चल नहीं पाता है, व्हील मूव नहीं कर पाता. तो ऐसा ही रोल जो है वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्ले करते हैं गवर्नमेंट में. वो लिंचपिन है ना. इसी तरह के और भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इस तरह के दिए हैं कि वो पाइवोटल रोल प्ले करता है. पाइवोटल रोल का भी मतलब यही हुआ कि वो पूरी की पूरी जो हमारी गवर्नमेंट जो चल रही है वो प्राइम मिनिस्टर के ही दम पर चल रही होती है. तो प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल पोस्ट होता है. ठीक है. अब इसके बाद हम लोग एक दूसरी चीज़ देखेंगे.
और वो है कि किस तरह से जब से हमारे यहाँ कोalition गवर्नमेंट की स्टार्टिंग होती है तो प्राइम मिनिस्टर के पावर्स में क्या चेंजेस आते हैं. ओके, वी विल डिस्कस दिस in the next class.